Glory to the Lamb of God. Hallelujah. Glorify you, King of glory. We worship you, exalt you, and we magnify you. Hallelujah. Magnify you. Hallelujah. Magnify you. Magnify you, Jesus. We magnify your holy name, King of glory. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. We bless you, Lord. Hallelujah. We magnify you, King of glory. We exalt you, exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah. Hallelujah. Exalt your name, exalt your name, exalt your name. Hallelujah, hallelujah. Worship your name, Lord. Lord, we worship your name. Lord, we bless you. We praise you, Lord Jesus. We praise you, hallelujah, glorious one of Israel. We praise your name, praise your name, praise your name, praise your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Holy One of Israel. We come into your presence, Holy One of Israel. Holy One of Israel, we come into your presence. Holy One of Israel, we come into your presence. Holy One of Israel, we come into your presence. Holy One of Israel, we come into your presence. Holy One of Israel. We magnify you. Holy One of Israel, we magnify you. We magnify you this morning. Glorious one, hallelujah. Hallelujah, we magnify you, magnify you, magnify you. We magnify you, hallelujah. We exalt you, exalt you, exalt you, exalt you, exalt you. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord, we thank you for the precious blood of the Lamb. We come under the blood. We come under the blood of Jesus of Nazareth. Father, we call upon the blood. We call upon the blood, Lord. We call upon the blood of Yahushua HaMashiach. Hallelujah, hallelujah. Lord, Lord, release the blessing of the blood, the benefits of the blood. Lord, release the protection of the blood. Lord, release the holiness of the blood. Lord, release the virtues of the blood. Lord, the health and healing in the blood. Lord God, hallelujah, your glorious presence that is hidden in the blood of the Lamb. Hallelujah. We bless you, bless you, bless you, bless you, bless you. We praise your name. We praise your name. We praise your name. Lord, we praise your name. Lord, we praise your name.
Lord, we praise your name. We bless your name. We praise your name, Lord Jesus. We praise your name. Hallelujah. Son of the living God. We praise you, Son of Man. We praise you, Jesus of Nazareth. We praise you, praise you, praise you, praise you. This morning we exalt you, Jesus. We lift up your name, Jesus. We bless you, Holy One of Israel. We bless you. We bless you, bless you, bless you. Holy One of Israel, we bless you, bless you, bless you. Holy One of Israel, we exalt your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Holy One of Israel, we bless you. Holy One of Israel, cleanse us in the precious blood. Cleanse us, wash us anew, Lord, in the precious blood. Lord, we pray for the mikvah. Lord, fresh mikvah in the blood of the Lamb. Lord, we pray for the fresh mikvah in the blood of the Lamb. Lord, I pray for the fresh mikvah in the blood, fresh mikvah in the blood of the Lamb. Fresh mikvah in the blood. Hallelujah. Fresh mikvah in the blood. Fresh mikvah in the blood, in the blood, in the blood. Fresh mikvah in the blood. Fresh mikvah in the blood. Hallelujah. In the blood of Yahushua HaMashiach. In the blood of Yahushua HaMashiach. In the holy blood of Yahushua. In the holy blood of Yahushua. In the holy blood of Yahushua HaMashiach. Father, in the holy blood. In the holy blood. In the holy blood, holy blood, holy blood, holy blood. In the holy blood, holy blood, holy blood, holy blood. In the holy blood. Father, in the holy blood, holy blood, holy blood. Holy blood. Father, in the holy blood, holy blood, holy blood, holy blood. Father, in the holy blood, holy blood, holy blood. Father, in the holy blood of Yahusha. Father, in the holy blood of Yahusha. Avinu Malachinu. Avinu Malachinu. Avun Dwashmayo. Avinu Malachinu. Avun Dwashmayo. Avinu Malachinu. Avun Dwashmayo. Through the blood of the Lamb, Avinu Malachinu, we come into your holy presence. Through the blood of Yahushua HaMashiach, Avinu Malachinu, we come into your holy presence. It is through our high priest. It is through our high priest who is after the order of Melchizedek. He is not in the lineage of Aaron. But he is the order of the Melchizedek. And he is at your right hand, Father. And he is forever interceding. Hallelujah. And so is his blood, silencing the accuser. Hasatan is the accuser who accuses us at the right hand of the Father. And thank you, Lord, for the precious blood of Yahushua HaMashiach. Lord, I bless the blood of Yahushua HaMashiach. Lord, I glorify the blood of Yahushua HaMashiach. I exalt the blood. I exalt the blood. I give glory to the blood, for the blood has prevailed, for the blood has conquered, for the blood has overpowered the enemy, and the blood has destroyed every ordinance, every writing, and every legal documentation that was against me. The blood disannulled it, and the blood already met all the holy requirements of God of heaven and the earth. God met all the demands to become my ransom. And not only the blood fulfilled all the demands of the justice of God, but the blood, hallelujah, but the blood also took the condemnation,
the blood also endured the judgment. Hallelujah. And the blood has also taken my punishment. Thank you, Lord. The justice is fulfilled, and so is the punishment, the judgment. And all culprits like me have been acquitted now by the blood of the Lamb. We rejoice, Lord. We sing, we dance and jump like calves of the stalls. We jump and dance and sing around like the calves of the stall, because the blood has redeemed us. The blood has redeemed us. The blood of Yahushua HaMashiach has redeemed us. The blood has redeemed us. The blood, we will be singing, hallelujah, the songs of the blood of the Lamb forever and ever, hallelujah, throughout eternity. For the blood has set us free. For the blood has set us free. For the blood has set us free. For the blood of the Lamb has set us free. For the blood of the Lamb has set us free. For the blood of the Lamb has set us free. For the blood of the Lamb has set us free. So we thank you, Father. Thank you, thank you. तेरा धन्यवाद यीशु मसीह, तेरे पवित्र लहू ने हमें छुड़ाया. तेरे पवित्र लहू ने स्वर्गीय न्याय की डिमांड्स को पूरा किया है. तेरे पवित्र लहू ने, हालेलुया यीशु मसीह, मेरी पनिशमेंट, मेरी सज़ा को भोग लिया. स्वर्गीय न्याय को भी पूरा कर दिया और मेरी सज़ा को भोग लिया. मेरी दोष की भावना को, मेरे अंदरूनी गिल्ट को तेरे लहू ने हटा दिया. मेरे अतीत को तेरे लहू ने धो दिया. मुझे नया किया. हालेलुया. नया जीवन दिया तेरे लहू ने. यीशु मसीह, तेरे लहू की जय जयकार. तेरे लहू ने मुझे स्नान दिया. हालेलुया. मिकवा किया, मेरा मिकवा मुझे धोया. तेरा लहू मुझे धोता रहता है. तेरे खून का चश्मा मुझे शुद्ध करता रहता है. मुझे यीशु मसीह की मानंद बनाता है. तेरे खून का चश्मा, यीशु नासरी, तेरे खून का चश्मा, पवित्र यीशु नासरी, तेरे लहू का चश्मा, तेरे लहू के चश्मे के लिए तेरा धन्यवाद. धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो. तेरा धन्यवाद हो. धन्यवाद, धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद. तेरे लहू की जय खुदावंद यीशु मसीह. तेरे पवित्र लहू की जय. तेरे पवित्र लहू की जय. तेरे पवित्र लहू की जय. तेरी स्तुति हो, स्तुति हो यीशु नासरी, तेरी स्तुति हो. हालेलुया. भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की. हालेलुया. 2 दिन मैं बहुत अलग अलग जगह ट्रैवल कर रहा था. बहुत सारे लोगों के बीच में गया प्रभु के वचन को लेके. हालेलुया. दूर दराज के इलाकों में, और मैं अपना सेल फोन घर में भूल गया. हालेलुया. प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते आज की सुबह. तेरे नाम की महिमा करते हैं. परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों पे हम मनन करेंगे, फिर हम प्रार्थना करते रहेंगे. मैं एक वचन देना चाहता हूँ. मैं चाहता हूँ आप पढ़िए एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरितों के काम, उसका 5 अध्याय. प्रेरितों के काम 5:42. द लास्ट वर्स. प्रेरितों के काम 5 अध्याय का अंतिम वचन सुनिए. एंड एवरी डे. क्या लिखा है? एंड एवरी डे इन द टेम्पल एंड फ्रॉम हाउस टू हाउस. पहली कलीसिया अभी भी टेम्पल के संग जुड़ी थी. हालेलुया. कौन सी टेम्पल? वही टेम्पल जिसमें वो पहले इकट्ठा होते थे. तो यहाँ पे लिखा है एवरी डे इन द टेम्पल एंड फ्रॉम हाउस टू हाउस. क्या थी कलीसिया?
कलीसिया थी हाउस टू हाउस। हालेलुया। टेंपल की लाइफ लाइन घर के संग जुड़ी है। यदि चर्च की लाइफ लाइन घर के संग नहीं जुड़ी तो चर्च लोगों का जीवन बदल नहीं पाएगी। तो चर्च एक ऐसे नए रेजरेक्ट किए, आत्मा के द्वारा धुले और नया जन्म पाए समाज को खड़ा नहीं कर पाएगी। यहां पे लिखा इन द टेम्पल एंड फ्रॉम हाउस टू हाउस। एक दूसरे के घरों में मिलकर प्रार्थना करते थे। घर घर में कलीसिया थी। घर घर में परमेश्वर का वचन खुलता था। घर घर में आराधना होती थी। ये थी पहली कलीसिया। इनफैक्ट आपको न्यू टेस्टामेंट में मिनिमम 14 रेफरेंसेस मिलेंगे जो ये बताते हैं कि कलीसिया घर में थी। चर्च बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट बहुत बाद में आया है। लोग घरों में मिलके प्रार्थना करते थे, घर घर में इकट्ठा होते थे, और लिखा प्रभु भोज भी घर घर में किया जाता था। ये चर्च और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन बाद में हुई। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। हालेलुया। ये जो प्रोफेशनलिज्म है अब, ऐसा नहीं था पहले चर्च के अंदर। कलीसिया एक ऑर्गेनिज्म था। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारे जीवित सेल जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर जीवित अंग हैं, लिम्स हैं, ऑर्गन्स हैं जीवित, वो जुड़े हुए हैं और वो परमेश्वर के जीवन से पल्सेट करते हैं। दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। चर्च was organism, church is organism, church will ever be an organism. जब चर्च को आप ऑर्गेनाइजेशन बनाते हो तब आप कलीसिया की आत्मा को मार देते हो। आप प्रोफेशनलिज्म लेकर आते हो चर्च के अंदर। आप चर्च को चलाते हो अपनी MBA की डिग्री के साथ, सेकुलर मैनेजमेंट के सिद्धांतों के साथ। सेकुलर जो सिद्धांत आपने सीखे ना, बिजनेस के, एथिक्स के, मैनेजमेंट के, लीडरशिप के, उनको आप चर्च के अंदर अप्लाई करते हो। जबकि संसार को कलीसिया के सिद्धांत अप्लाई करने चाहिए, लेकिन यहाँ कहानी उल्टी है। तो आप सेकुलर संविधान के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ चर्च चलाते हो, उसी तरह का बोर्ड चुनते हो, उसी तरह के बीच में लोग होते हैं जो उसको डायरेक्शन देते हैं। और प्रोफेशनलिज्म के सिद्धांत आप लाते हो चर्च में। कैसे इसकी मार्केटिंग करें, कैसे इसकी ग्लोबलाइजेशन करें, इंटरनेशनल अपील दें इसे, कैसे इसकी मार्केटिंग की जाए, कैसे प्रोडक्ट्स बनाए जाएं जो सेल किए जाएं। ये जो बातें आप सुन रहे हो, कैसे इसकी हाइप क्रिएट की जाए, कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किए जाएं। मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए ध्यान से। ये है इस मॉडर्न एज के कर्ज। होना ये चाहिए था कि कलीसिया के अंदर लोगों को घुटनों का जीवन सिखाया जाता। होना ये चाहिए था कि कलीसिया के अंदर लोगों को क्रूसित जीवन, क्रूस उठा के चलना है। मत्ती 7:14 स्ट्रेट गेट में से एंटर करना है और सकरे मार्ग पे चलना है, क्रूस को उठाना है, अपने फ्लैश को क्रूस पे चढ़ाना है और यीशु मसीह के लिए जीना है। ये डिवाइन रूहानी सिद्धांत सिखाए जाते, लेकिन इसकी जगह किसने ले ली भाई और बहनों? दुनियावी जो प्रिंसिपल्स ने ले ली। मोटिवेशनल प्रीचिंग, लोगों को मोटिवेट करना है, पॉजिटिव थिंकिंग सिखानी है, मेटाफिजिकल साइंस सिखानी, लोगों को लॉज ऑफ अट्रैक्शन सिखाने हैं, लूसीफेरियन डॉक्ट्रिन सिखानी है। क्योंकि जड़ें नहीं हैं वचन की
परमेश्वर के कलाम की। तो देखिए कलीसिया कहां से कहां पहुंच गई। हालेलुया। तो यहां पे जो मैं वचन आपको दे रहा हूं, मैं कुछ बातें आपको देना चाहता हूं चुनौती के रूप में, मनन कीजिएगा इनके ऊपर। यहां पे लिखा है फ्रॉम इन द टेम्पल एंड फ्रॉम हाउस टू हाउस, और कैसे एवरी डे। पढ़ रहे हैं आप Acts of the Apostles chapter number 5 verse number 42. This was every day. This was not only on Sunday, that from Monday to Saturday you have your secular life and then you have another life on Sunday. It was not so. यहाँ पे लिखा and every day in temple and from house to house. ये है चर्च। They did not cease. They did not cease. वो रुके नहीं प्रेरित। They did not cease teaching and preaching that Christ is Jesus. हर दिन टीचिंग एंड प्रीचिंग, प्रार्थना, आराधना, रोटी तोड़ना, प्रभु की संगति में रहना, हर दिन। संडे का ये कॉन्सेप्ट पता नहीं कहाँ से आया मुझे। संडे का ये रोमन कैथोलिक चर्च की देन है, केवल संडे का आइडिया। कलीसिया का जीवन प्रतिदिन का था, एवरी डे। पढ़ लीजिए, वचन दे रहा हूं आपको मैं। तो मैं आपको बताता हूं ये 10 कमेंडमेंट्स एक विश्वासी की क्या है। सबसे पहली बात, मत्ती 6 की 11, लूका 11 की 3। क्या कहते हैं यीशु मसीह? हर एक विश्वासी का जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। आज प्रार्थना नाम होता है प्रार्थना सभा, लेकिन वहाँ पे प्रार्थना नहीं होती। भाई और बहनों, प्रार्थना की डेप्थ को, प्रार्थना की गहराई को अभी कलीसिया ने एक्सप्लोर ही नहीं किया, क्योंकि प्रार्थना का गहरा जीवन है नहीं लोगों के पास। प्रार्थना सभा के नाम पे सोशल गैदरिंग तो ज़रूर है। हम कहते हैं प्रार्थना सभा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद फेसबुक पे आप जो पोस्ट डालते हो, तस्वीरें डालते हो, वो होती हैं बारबेक्यू की। बहुत सारा गोश्त पक रहा है, तरह तरह के खाने पक रहे हैं, पोस्ट उसकी डली होती है, और नाम होता है प्रार्थना सभा। सबसे पहली कमांडमेंट है प्रे एंड प्रे फर्वेंटली। मत्ती 6:11, लूका 11:3। प्रे फर्वेंटली। कलीसिया की लाइफ लाइन थी प्रार्थना, पहली कलीसिया की। हालेलुया। आपको मालूम पहली कलीसिया जो थी 3 टाइम्स अ डे प्रार्थना करती थी, हर दिन करती थी, और दिन में 3 बार प्रार्थना करती थी पहली कलीसिया। दूसरी कमेंडमेंट यीशु मसीह की क्या है? क्रूस उठा के मेरे पीछे चल। आप बगैर क्रूस उठाए यीशु मसीह के पीछे मत चलिए। बहुत से क्रिश्चियन हैं जिन्होंने क्रूस को कहीं टिका दिया है, रख दिया है, और यीशु मसीह के पीछे चलने की कोशिश कर रहे हैं। आप कभी भी यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते जब तक आपका जीवन क्रूसित नहीं है, जब तक आपने क्रूस उठाया नहीं है। शरीर की वासना, आँखों की अभिलाषा, और इस संसार के लिए बहुत सारा प्यार जो आपके अंदर है, दुनियावी चीज़ों के लिए बहुत सारी मोहब्बत है आपके अंदर, वो दुनिया के लिए, दुनियावी चीज़ों की मोहब्बत से अपने दिल को आप भरते हो, और शरीर की वासना, आँखों की अभिलाषा, ये सब लिए यीशु मसीह के पीछे कैसे चलोगे भाई? वो तो क्रूस पे क्रूसित किया गया मसीहा है। जिसके पीछे आप चलना चाहते हो उसके शरीर में आज भी क्रूस के घाव हैं। उसके पीछे आप कैसे चलोगे? लूका 9:23 में लिखा है, टेक अप योर क्रॉस एंड देन फॉलो मी। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को नहीं बुलाया बगैर क्रूस उठाए। आज मोटिवेशनल प्रीचर लोगों को कॉलिंग दे रहे हैं यीशु मसीह के पीछे आने की, बिना क्रूस उठाए। बिना क्रूस उठाए यीशु मसीह के पीछे आइए, चर्च के अंदर भरिए, 20,000 30,000 लोग हों, हम बहुत बोस्ट करें, ग्लोट करें कि बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है हमारी। प्रभु की सेकंड कमांडमेंट है, टेक अप योर क्रॉस, कम एंड फॉलो मी।
और क्या करती थी पहली कलीसिया? प्रेरितों के काम 2 का 46 में, दे वर कंटिन्यूअली प्रेइंग इन वन अकॉर्ड। कलीसिया कंटिन्यूअली प्रार्थना करती थी, एक मन एक चित्त होके। बताइए मुझे आज कहाँ एक मन एक चित्त है ये? स्पिरिट में, स्पिरिट में और सोल में। हालेलुया। कलीसिया एक मन थी, कलीसिया एक चित्त थी। थर्ड कमांडमेंट थी ये, कंटिन्यू इन वन अकॉर्ड। और फिर चौथी कमांडमेंट यीशु मसीह की क्या थी? मत्ती 26:55, लूका 19:47। यीशु मसीह ने कहा सबको सिखाओ। पहली कलीसिया डेली टीच करती थी, डेली टीचिंग परमेश्वर के कलाम की, परमेश्वर के सच्चे जीवित अभिषिक्त वचन की शिक्षा डेली। हालेलुया। और पांचवी कमांडमेंट क्या थी पहले कलीसिया के लिए? प्रेरितों के काम, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 2:47, 16:5। क्या पांचवी आज्ञा थी? विन सोल्स। पहली कलीसिया प्रभु के लिए रूहें जीतती थी। हालेलुया। आप आत्माएं जीत रहे हैं प्रभु के लिए? आपकी कलीसिया कैसे बढ़ रही है? बायोलॉजिकली बढ़ रही है कि मतलब पंजाबियों के अंदर पंजाबी इकट्ठे होते जा रहे हैं, पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तानी और गुजरातियों के अंदर गुजराती इकट्ठे हो रहे हैं? ये कोई मतलब क्या आपके केवल एक कल्चरल ग्रोथ हो रही है, या सचमुच में आत्माएं जीत रहे हो आप प्रभु के लिए? पाप में, अंधकार में भटक रही रूहों को यीशु मसीह के पास ला रहे हो या नहीं? यदि आपकी कलीसिया आत्माएं नहीं जीत रही तो आपकी कलीसिया मर चुकी है। सुन लीजिए मेरी बात। यदि आप आत्माएं नहीं जीतते तो आपका जीवन जो है वो प्रभु यीशु मसीह में बढ़ नहीं रहा है। हालेलुया। छठी कमांडमेंट है प्रीच जीसस। प्रेरितों के काम 5 का 42 में लिखा, दे वर प्रीचिंग जीसस। दे वर नॉट प्रीचिंग अबाउट जीसस, दे वर प्रीचिंग जीसस। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है यहूदी जो हैं वो चिन्ह चाहते हैं और यूनानी विजडम, बट वी प्रीच क्राइस्ट क्रूसिफाइड। लेकिन हम क्रूस पे चढ़ाए यीशु मसीह, ओरिजिनल टेक्स्ट कहता है यीशु मसीह को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह का प्रचार नहीं करते। सुनिए ध्यान से, यीशु मसीह का प्रचार करना और यीशु मसीह को प्रचार करना दोनों में भेद है। पॉल द अपोस्टल कहता है वी प्रीच क्राइस्ट, नॉट वी प्रीच अबाउट क्राइस्ट। यीशु मसीह को प्रचार करने का मतलब आपके अंदर यीशु मसीह है, आप दूसरों को यीशु मसीह बांट रहे हो। हालेलुया। तो ये थी पहली मंडली, दे वुड प्रीच क्राइस्ट, नॉट प्रीच अबाउट क्राइस्ट। और 7th कमांडमेंट क्या है इस नए नियम में? 7th कमांडमेंट एक विश्वासी के लिए क्या है? प्रेरितों के काम 17 का 11, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 17:11। एक कलीसिया है बिरिया नाम के एक गांव में, प्रेरित पौलुस प्रचार करता है उस इलाके में। ये कलीसिया के लोग उससे सुनने जाते हैं और रात को प्रचार सुन के लौटते हैं। उस समय गाड़ियाँ नहीं थी, इस तरह के ऑटोमोटिव नहीं, मोबिल नहीं थे, तो लोग खच्चरों के ऊपर और लोग घोड़ों के ऊपर जाते थे। तो वो रात को अपने घर लौटते होंगे और उस समय बिजली नहीं थी और वो चिराग जलाते होंगे और चिराग जला के कलाम चेक करते थे। और कलाम ऐसे कन्वीनियंट रूप में नहीं था जैसे बाइबल है बहुत कन्वीनियंट आपके पास। आप तो तब भी बाइबल से प्यार नहीं करते जबकि इतनी छोटी सी बाइबल भी मिल जाती है। वो लोग कितना प्यार करते थे खुदा के कलाम से। वो रात को घर में जाके कलाम खोलते थे और कलाम ऑब्वियसली लेदर स्क्रोल्स में होता था, पेपरियस में होता था और सारी किताबें इकट्ठी नहीं होती थी। आपको मालूम क्या स्वरूप था वचन का? पहले स्क्रोल्स को खोलते थे रात को और कलाम को पढ़ते थे
सोते नहीं थे घर जाके। वो जो पौलुस ने प्रचार किया वचन से मेल खाता है या नहीं, कलाम में से खोजा करते थे वो लोग। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल 17:11, प्रेरितों के काम 17 का 11 पढ़ लीजिए। फिर ये चेले क्या करते थे पहली कलीसिया? 8वीं कमेंडमेंट क्या है? प्रेरितों के काम 19 का 9, प्रेरितों के काम 19 के 9 में लिखा है वो आपस में वचन डिस्कस करते थे। हालेलुया। आपस में बैठ के वचन की बातें करते थे। हालेलुया। किस पे बातें मनन करते थे? कलाम पे। यहाँ पे सुनिए, हालेलुया। ये लिखा है, But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way, इसको द वे बोला जाता था, मसीहत का नाम था द वे, evil of the way, before congregation he withdrew from them and took disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. उसमें क्या करते थे? कलाम पे रीजनिंग करते थे, विचार विमर्श करते थे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते थे वचन के ऊपर। वो वचन से प्रीति करते थे। दे लव्ड द वर्ड। हालेलुया। और 9th कमेंडमेंट क्या है? 2 Corinthians 11, और हम पढ़ेंगे 28। 2 Corinthians 11:28। 2 Corinthians 11:28। हालेलुया। थैंक यू जीसस। 2 Corinthians 11:28 में लिखा है, ये लोग जिम्मेदारी उठाते थे। 9th कमेंडमेंट है, दे वुड कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी उठाने वाले विश्वासी लोग थे। सुने अब क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे लिखा है, हाँ, यहाँ पे लिखा है, एंड अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स देयर इज डेली प्रेशर ऑन मी एंड माई एंग्जाइटी फॉर ऑल चर्चेज। हालेलुया। कंधों पे कलीसियाओं की जिम्मेदारी है। हालेलुया। एक की नहीं, वो सब मंडलियों की, कलीसियाओं की जिम्मेदारी को ये लोग उठाते थे। एंड 10th कमेंडमेंट क्या है? Hebrews 3:13, एग्जॉर्ट वन अनदर। एक दूसरे को एग्जर्टेशन दो, एक दूसरे को प्रभु में मजबूत करो। ये 10 काम पहली कलीसिया किया करती थी। हालेलुया। ये 10 कमेंडमेंट्स थी पहली चर्च के लिए। हालेलुया। आए हो भाई और बहनों, हम प्रार्थना, अग्रेसिव जीवन बनाएं प्रार्थना में। आप हम मे योर प्रेयर लाइफ बिकम द लाइफ ऑफ प्रेयर। मे योर प्रेयर लाइफ become the life of prayer. May prayer be such intuitive thing for you, such natural thing. May you never have to exert to pray. May this be the new norm for you. May this be a very natural phenomena for you. Just like you breathe, you inhale and exhale. You don't exert to breathe in and breathe out, do you? You don't. Just a natural phenomena. May this be your prayer life. Hallelujah. Hallelujah. And our role model is Jesus of Nazareth. Look at Jesus. He was always praying. बचन में लिखा है, वो मत्ती 14 अध्याय में यीशु मसीह लगातार 3 दिन से मिनिस्ट्री करता है सी ऑफ गैलिली के नॉर्दर्न शोर पे, और बहुत भीड़ है वहाँ पे। यीशु मसीह अपने चेलों को नाव में बिठा देता है। अगर आप पढ़ेंगे जॉन 6:15 तो उसका बैकड्रॉप क्या है कि यीशु मसीह ने 5000 पुरुष हैं, स्त्रियों की गिनती बहुत थी, बच्चों की गिनती बहुत थी, और उन पुरुषों को गिना जाता था जो 20 ईयर्स की एज के होते थे।
जो लड़ाई के मैदान में जा सकते थे। बिलो 20 ऑल वर कंसिडर्ड टीनेजर एंड दे वर नेवर काउंटेड। तो एक बड़ी भीड़ थी, बड़ी भीड़, जिसको यीशु मसीह ने खाना खिलाया और स्वादिष्ट खाना खाया। तो अगर आप पढ़ेंगे जॉन चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 13-14 से, तो वो लोग जो थे उन्होंने सोचा कि इसने इतना बड़ा चमत्कार किया, यही हमारा मसीहा है। तो वहाँ लिखा है दे वांटेड टू क्राउन हिम द किंग। वो यीशु मसीह के सर पे ताज रख के उसे राजा घोषित करना चाहते थे। इतनी बड़ी भीड़ थी और परहैप्स दे वर ऑल शाउटिंग हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जीसस इज अवर रूलिंग किंग, ही इज द मसाया, ही इज द किंग, ही विल सिट इन द थ्रोन ऑफ डेविड। तो ऐसे ऐसे जय जयकार शाउटिंग हो रही थी। तो यीशु मसीह के चेले जो थे वो इस बहाव में बह जाते, और इतनी बड़ी भीड़ जब हल्ला मचा रही है और बहुत खुश है कि हम यीशु मसीह की ताजपोशी कर दें, तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने चेलों को नाव में बिठा दिया, और वहाँ पे लिखा है जीसस कंपेल्ड देम टू सिट इन द बोट। यीशु मसीह ने जबरदस्ती चेलों को बोट में बिठाया और उनको बोला गो टू द अदर साइड, गो अहेड ऑफ मी, मेरे से पहले चले जाओ। इसलिए क्योंकि चेले डिसाइपल कुड हैव बीन स्वेड बाय द मॉब एंड दे वुड हैव जॉइंड द मॉब इन मेकिंग जीसस द किंग। शैतान क्या चाह रहा था? शैतान चाह रहा था यीशु मसीह को राजा बनाया जाए, यीशु मसीह के सर पे क्राउन रख दिया जाए, क्रूस पे जाए बगैर, कि यीशु मसीह को क्रूस पे जाने की ज़रूरत नहीं है, यीशु मसीह को वैसे ही राजा बना दिया जाए। आपके दिल में भी ऐसी तमन्ना उठती है ना कि बिना क्रूस उठाए आपके सर पे ताज रख दिया जाए, आपको राजा बना दिया जाए या रानी बना दिया जाए, या आपको सारे प्रतिफल मिल जाएं बिना क्रूस उठाए? क्रूस नहीं उठाना चाहते आजकल लोग। आजकल लोग चाहते हैं बिना क्रूस उठाए ही भविष्यवाणियां कर दें पास्टर हमारे लिए, बरकत मिलने जा रही है, आशीष मिलने जा रही है, रियल एस्टेट मिलने जा रहा है, तुम्हें नई नौकरी मिलने जा रही है, बिजनेस बढ़ने जा रहा है तुम्हारा। ये ऐसे करते हैं कई आजकल के नबी लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ, झूठी भविष्यवाणियाँ, इसलिए कि लोग खुश हो जाएं और उन्हें पैसा दे दें। यह कड़वी सच्चाई है, सुन लीजिए। लोगों को सच्चा मार्ग नहीं बताते पादरी लोग, घरों में जाके स्पेशल प्रेयर कर देते हैं अन्य जातियों के भविष्यवाणियों वाली, और वो खुश होकर पैसे दे देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि लानत कितनी बड़ी पड़ेगी स्वर्ग से। ये झूठे प्रचारक, झूठे नबी, ये भेड़ियों की मानिंद है। पेट जिनका परमेश्वर है, जिनका परमेश्वर यहोवा नहीं, कलाम में लिखा है पेट इनका परमेश्वर है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावन तेरा सच्चा कलाम, तेरे सच्चे राह, तेरी सच्ची विधियां लोगों को सिखा। खुदावन तेरे कलाम को तोड़ना मरोड़ना, खुदावन प्रचारक तेरी पवित्रताई से समझौता करते हैं, वो तेरी पवित्रताई लोगों को नहीं सिखाते, तेरी धार्मिकता लोगों को नहीं सिखाते। खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा, खुदावंद अपना हाथ बढ़ा इन अंतिम दिनों में। खुदावंद हमारे ऊपर अपना हाथ बढ़ा, हमें सच्चे मार्ग पे चला। खुदावंद सच्चा कलाम दे लोगों को खुश करने वाला नहीं कि लोग पैसा दे दें, लोगों को झूठी आशा ना दें जादूगरी विचक्राफ्ट के द्वारा। खुदावंद तेरा सच्चा कलाम दे ताकि लोग अपना जीवन तेरे संग सही करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद हम तेरे नाम की स्तुति करते हैं।
खुदावंद हम तेरे नाम की मदा सराई करते हैं। जिस तरह पहली मंडली, जिस तरह खुदावंद तेरे सच्चे प्रेरित दिन और रात तेरे सच्चे कलाम को सिखाते थे, खुदावंद लोगों की ताड़ना करते थे, लोगों को इंस्ट्रक्शन देते थे, खुदावंद लोगों को तेरा सच्चा कलाम सिखाते थे, तेरे सच्चे मार्गों पे चलाते थे। खुदावंद वैसे तेरे प्रेरित, तेरे सच्चे सेवकों को खड़ा कर, जो पैसे के पीछे नहीं भाग रहे, जिनके अंदर खुदावंद सच्चाई है, जिनके अंदर इंटेग्रिटी है, जिनके अंदर खुदावंद वफादारी है, जो सच्चे हैं तेरे दास, वो खड़े कर खुदावंद। हालेलुया, तेरा हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। खुदावंद वो पहली मंडली, पहली कलीसिया वाली अग्नि भेज खुदावंद, वो सच्ची शिक्षा खुदावंद, वो प्रेरितों का समय। हालेलुया खुदावंद, वो अग्नि, वो बेदारी पवित्र आत्मा की, वो पवित्रताई के लिए भूख, पवित्र जीवन जीने की भूख। हालेलुया, धर्मी जीवन जीने की भूख खुदावंद, रोशनी में चलने की, तेरे लहू के साए के नीचे बने रहने की, तेरे पंखों के नीचे जीवन जीने की ललक, प्यास, डिज़ायर लोगों में पैदा कर। हालेलुया, हालेलुया, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। वो सच्ची कलीसिया को खड़ी कर खुदावंद, सच्ची मंडली को खड़ी कर खुदावंद, तेरा सच्चा कलाम लौटा के लेके आ, सच्चा कलाम खुदावंद। हमें साइकोलॉजी नहीं चाहिए जो पास्टर प्रीच करते हैं, हमें लॉज ऑफ अट्रैक्शन नहीं चाहिए। लॉज ऑफ अट्रैक्शन प्रीच करते हैं लोग, देखिए देखिए गोल्ड डस्ट आने वाली है, देखिए देखिए अपने हाथों को ऑयल आने वाला है। इट्स ऑल लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इट्स नॉट द वर्ड ऑफ गॉड। अगर आपके ऊपर सचमुच यहोवा का बलवंत हाथ है तो अपने आप गोल्ड डस्ट मैनिफेस्ट करेगी। मैंने आज से 26 ईयर्स पहले गोल्ड डस्ट गिरती देखी। आई वॉज इन वर्जीनिया यूएस में, और मैं एक सभा में गया, मैंने लेडी को देखा, वो ब्राज़ीलियन लेडी थी, बिल्कुल सिंपल औरत, उसे अंग्रेजी भी नहीं आती थी, वो स्पेनिश बोलती थी, बहुत साधारण औरत थी, और वो प्रार्थना करने लगी। मैं बिल्कुल उससे 2 फुट दूरी, 3 फुट की दूरी पे खड़ा था, और अचानक उसके सर के ऊपर लगभग 3 फीट ऊपर एक रेल्म अपीयर हुआ, जिसे मैंने अपनी आंख से देखा, और वहाँ से गोल्ड डस्ट की बरसात होनी शुरू हो गई। और मैंने लोगों को देखा जिनके दांतों की कैविटीज भर गई गोल्ड से। ये सच्चे मिरेकल होते हैं, लेकिन लोग आजकल फेक कर रहे हैं इनको। बहुत से लोग हैं, ये फेक के कारण ओरिजिनल बंद हो गया। परमेश्वर के वरदानों का लोग दुरुपयोग करते हैं, परमेश्वर के वरदानों को अपनी सेवकाई को बिल्ड करने के लिए एक स्कैफोल्डिंग बना लेते हैं, स्टेयर वे बनाते हैं, उसे स्टेयर केस बना लेते हैं, और बहुत झूठ, फ्रॉड। भाई और बहनों, अद्भुत चिन्ह, अद्भुत निशान प्रकट होते हैं, लेकिन उस लेवल का जीवन चाहिए प्रभु के साथ, उस दर्जे का जीवन चाहिए। ये सच्चे खुदा के दास होते हैं, सच्चे प्रेरित, जिनको पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं लेना देना होता कि कितने फॉलोअर हैं फेसबुक पे, ट्विटर पे। दे डोंट डैम केयर अबाउट दैट। और उन सच्चे जो वैसल हैं, उनके द्वारा ये काम होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के बर्तन जिनके द्वारा वो अपने जलाल को प्रकट करता है, वो अलग बर्तन है। हालेलुया। हमें वो पात्र बनना है भाई और बहनों। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखता है कि यहोवा परमेश्वर उसके अपने सॉवरेन माइंड में चुनता है, वो बर्तन को पहले चुन लेता है कि कौन सम्मान का बर्तन होगा, विच इज गोइंग टू बी द वेसल ऑफ ऑनर and which is not going to be the vessel of honor. It is God who determines. Hallelujah. Because he sees the heart. Why would God not love Esau and love Jacob? Jacob was a swindler from the very birth. His brother was breaking the matrix and trying to come out. He was holding his heel. He was a heel
catcher, the supplanter, because inside the mother's womb he was fully aware of the birthright, the blessing of the firstborn, and he didn't want his other brother to take away the blessing of being firstborn. So we see that he stole the blessing for, लेकिन वचन में लिखा है दूसरे के विषय में, Esau was such a dumb person. He was such a fool that he sold away his birthright for a bowl of soup. For a bowl of lentil he gave away. He never placed value on the divine inheritance, the divine heritage, the blessing that God already bestowed upon him. He placed no value. He was such a stupid person. He looked for his belly. And God knew it even before they were created in the womb of their mother. So God hated Esau and loved Jacob. God did not hate Esau based upon his works. यही आर्ग्यूमेंट प्रेरित पौलुस पेश करता है कि अभी तो ईसाऊ और जेकब पैदा भी नहीं हुए थे। परमेश्वर ने पहले क्यों कह दिया कि परमेश्वर ने ईसाऊ से वैर किया और याकूब से प्यार किया? Why did God say? Why would God hate? आज जो अमेरिका की गॉस्पल है ना, उसमें तो हेट है ही नहीं। गॉड लव्स बोलते हैं, वो हेट वाली तो बात ही नहीं बताते। गॉड डज हेट। पढ़ें कलाम को केयरफुली। लव 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 की सूडो गॉस्पल मत प्रीच करें। तो वचन में लिखा गॉड हेटेड ईसाऊ एंड ही लव्ड जेकब। लेकिन अभी वो पैदा भी नहीं हुए, अभी ईसाऊ ने कोई बुरा काम किया भी नहीं है। तो परमेश्वर की चॉइस आपके कामों पे बेस्ड नहीं है। जो परमेश्वर की फोर नॉलेज है, परमेश्वर की प्रीडेस्टिनेशन है, इट इज नेवर लैच्ड अनटू व्हाट यू डू। इट इज not determined by your deeds. The foreknowledge of God is the infinite, eternal mind of God that has seen everything. Even before you were born, even before Esau was born, God said, I hated him. Why? Because God saw what Esau will become. He knew how his heart will react. हालेलुया। तो भाई और बहनों, परमेश्वर अनंत है, परमेश्वर के मार्ग अमोघ है, परमेश्वर के कामों की थाह मनुष्य नहीं पा सकता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस ऑफ नाज़रेथ। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर भाई और बहनों इंसान के दिल को देख लेता है कि ये कैसा बनेगा। अभी वो दिल माँ की कोख में तैयार भी नहीं हुआ है, परमेश्वर उससे पहले देख लेता है। वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। हालेलुया। प्रभु हम तेरे हजूर में आते हैं, खुदावंद हम अपने जीवन तेरे चरणों में रखते हैं। तू हमारे जीवनों को जानता है खुदावंद। खुदावंद तू हमें सम्मान के बर्तन बनाना खुदावंद, vessels of honor. Hallelujah. The vessels that would be in the bedroom of the great king. Hallelujah. The vessel who will be in the closet, in the most intimate chamber of the king, the king of glory. Hallelujah. खुदावंद हम अपने इन बर्तनों को तेरे हजूर में लाते हैं आज की सुबह। आइए सब प्रार्थना करें। खुदावंद अपने बर्तनों को, अपने वैसल्स को तेरे हजूर में लाते हैं। Lord, may you flood our hearts with your Holy Spirit. Lord, may you fill our soul with your Holy Spirit. Lord, I pray for everyone that is online. I pray for the fresh baptism, fresh filling of the Holy Spirit. Fill your people in a fresh way. Lord, fill us fresh with the Holy Spirit. Fill us fresh. सभी प्रार्थना करें, पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा मुझे भर। हालेलुया। सबसे पहले मेरे संग प्रार्थना करें। Say after me, say, Father, in the blessed name of Yahushua HaMashiach. Father, in the blessed name of Yahushua HaMashiach, I come into your presence. Father, thank you that through the blood of Yahushua, I can come before you. Father, thank you that because of your eternal Spirit, the Spirit of adoption,
the spirit of sonship, I can call you Abba, Father. For you are my Abba. You are my Daddy. You are my blessed Father. Father, I pray for mikvah, cleansing in the blood. Cleanse my heart and my soul in the blood. Purify me. Remove all the dross, Lord. And Lord, melt the gold in the crucible, in the fire. Purge me, cleanse my body and soul in the blood. Hallelujah. Cleanse me in the fire of your presence. Purify me in the fire of your presence. Stretch forth your right hand, Abba, Avinu Malachinu, place on me. I bring before you my family, my wife, my 3 sons. I bring them, my mother, my brothers and their houses. And Father, I bring all these loved ones, they are my family too, in the blood of the Lamb. I bring this family worldwide, family in India before you. Father, Holy Father, pour the water on us now. Lord, pour the water and cleanse us. The water of your word. Pour the water of your word over your people that are listening. Pour the precious water of your word. Cleanse us this morning. Cleanse. I pray for deeper cleansing, deeper bathing, deeper washing, Lord. Lord, I humble myself. Oh, say to the Lord, say, Lord, I humble myself. I repent of sins of presumptuousness. I repent of hidden sins. I repent of sins of my eyes. I repent the sins of my tongue. I repent the sins of my thought. I repent the sins of my desire. Lord, wash me in your precious blood. Purge me, cleanse me in the power of your blood. Cleanse me in the stream that flows, the fount that flows. Hallelujah. वो चश्मा जो बहता है, hallelujah. वो चश्मा कलवरी से बहता है. वो चश्मा कलवरी से बहता है. वो आज भी पापों को धोता है. वो आज भी पापों को धोता है. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है. पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है. वो अंधी आँखें खोलता है. वो अंधी आँखें खोलता है और मुर्दों को जिलाता है. और मुर्दों को जिलाता है. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है. पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है. यीशु नाम में कुदरत पाई जाती. खुदावंद मैं तेरे नाम की घोषणा करता हूँ तेरे लोगों पे. लॉर्ड, आई release the name of Yahusha HaMashiach. I invoke the name Yahusha HaMashiach, Yahusha HaMashiach, Yahusha HaMashiach, the King of Glory, Yahusha HaMashiach, King of Glory, Yahusha HaMashiach, King of Glory, Yahusha HaMashiach, King. मेरे संग संग लें प्रभु का नाम, इन्वोक करें name of Jesus, Yahusha HaMashiach, King of Glory. Close your eyes and invoke the name Yahusha HaMashiach, King of Glory. 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 Yahusha HaMashiach,
King of glory, Yahushua HaMashiach, King of glory, Yahushua HaMashiach. King of glory, Yahushua HaMashiach, King of glory, Yahushua HaMashiach, King of glory, Yahusha, you are seated at the right hand of the exalted Holy One, the Ancient of the Days, King of Yashrael, we bless your holy name. You are Alpha and the Omega. You are beginning and the end. You are the way, you are the way, you are the door, you are the light. Shine in me, shine through me, Lamb of God, slain from the beginning of the universe. There is none like you, there is none besides you. You alone do wonders in heaven above, on the earth, beneath the earth. Your name is glorious. You are the lily of the valley. You are the rose of Sharon. Oh, you are the balm of Gilead, my beloved. For I long for you, Emmanuel. Emmanuel, God is with us. You shoulder the government. Your shoulders are so strong that you carry the governments of the universe. You are mighty God, everlasting Father. You are wonderful. You are Counselor. You are King of kings. You are Lord of eternity. You are Ancient of the days. You are the vine, and I am the branch. I abide in you. Thereby I bring forth much fruit. You are the vine, and I am the branch, O King of glory. King of glory, you are the Son of righteousness. In your rays, hallelujah, in your wings, the rays, there is healing. There is healing in your rays. Lord, I bask in your glory. Lord, when you rise, day star, I sit in your radiance, Lord. For your rays heal me internally and externally, and I am healed, hallelujah, by the wounds of Jesus. I am healed by the stripes of Jesus. मेरे संग confess करें, by the wounds of Jesus I have been healed. By the stripes of Jesus I have been made whole. I am made whole by the suffering of Jesus. यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ. यीशु मसीह confess करें, अपना मुंह खोलें, declare करें, यीशु मसीह तेरे मार खाने से, तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ. यीशु मसीह तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ. यीशु मसीह मेरी देह चंगी हुई है तेरे कोड़े खाने से. खुदावंद, मैं तेरे कोड़ों की कुदरत को खोलता हूँ मनीषा सिंगी के हस्बैंड के ऊपर. तेरे कोड़ों की कुदरत उसके जीवन में काम करे. सारे पाप क्षमा करना जो उसने किए हैं खुदावंद. करुणा करना, दया करना और चंगा करना खुदावंद. खुदावंद, मैं मीनू सूद के लिए भी प्रार्थना करता हूँ. खुदावंद, तेरा खून उसके ऊपर छिड़कता हूँ. उसकी चंगाई के लिए दुआ मांगता हूँ खुदावंद. हालेलुया. खुदावंद, यीशु मसीह, मैं दुआ मांगता हूँ. आपको अगर किसी को प्रार्थना की कोई विनती है, प्लीज़ जस्ट टाइप राइट अवे, टाइप राइट अवे. प्रार्थना की विनती भेजिए. हालेलुया. हाल खुदावंद, मैं पूजा बिष्ट के लिए भी, उसके घराने के लिए भी दुआ मांगता हूँ. खुदावंद, मैं भाई महेश जो दिल्ली में है उसके लिए खुदावंद, और सिल्वा राज के लिए, उनके घराने के लिए, खुदा मिस्टर कक्कड़ के ख़ानदान के लिए, करण के लिए, और खुदावंद मोनिका सब्रवाल उनके बेटे के लिए भी दुआ करता हूँ. का खून छिड़कता हूँ. खुदावंद, मैं तेरा नाम इन्वोक करता हूँ तेरे लोगों के ऊपर. लॉर्ड, आई invoke your name over Bahadur Singh Akash, over Harjinder Pal, over Jasveer Singh Surinder, over Komal Masih. Invoke your name, Lord, over Sahil from Pakistan,
over Minu Sood, over Amandeep Kaur and whole family. I invoke your name, Lord, over Vinod Christian from Canada and his wife Vinodini Christian. Invoke your name, Yahushua HaMashiach. I invoke your name, Lord, over Sonia Nar. I invoke your name, Lord, over Hallelujah, Harjinder Pal, Lord. I invoke your name over Gurdeep Singh. I invoke your name over Joyce Munir from Philadelphia, US, Lord. I invoke your name, King of Glory. Hallelujah. Over Pooja Bisht. Lord, I invoke your name over Komal Masih's husband and family, Joyce Munir's entire household, over Manisha Singhi and her father-in-law who is paralyzed. I invoke your name over Tanuja Seth. Lord, heal Tanuja Seth. I pray for Tanuja Seth's husband. Fill their house with joy and fill them with your glory, Lord. I pray for Yogesh Kushal, for his life and for his family, Lord, in the name of Jesus. Lord, I pray for Harjinder Pal's wife. Lord, I command this migraine. This is certainly a demonic entity. I break the hold of migraine in her head in the name of Jesus. You will leave her now, for I adjure you, you afflicting spirit, I adjure you in the name of Yahushua HaMashiach. Leave her brain, neurons, leave her brain blocks, leave in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ओ मेरी जान दा खेला है, न जाते पनागा. गाइए. ओ मेरी जान दा खेला है, न जाते पनागा. सो मैं ते अपनी जगह तो न कदी टलांगा. खुदावंद नू उड़ीक दी रह, आराम नाल मेरी जान. खुदावंद, मैं गुरदीप सिंह की बहन रजनी को आपके आगे उठाता हूँ. हॉस्पिटल में खुदावंद आपका हाथ उसके जीवन पे आए. Lord, I pray that she would be in your hands. Lord, I cover her under your blood. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Lord. खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. आज 11 o'clock आई विल बी लाइव बैक अगेन. मैं मिनिस्ट्री के लिए गया 2-3 दिन के लिए, ट्राइबल लोगों के लिए, झुग्गी में रहने वाले नोमैड्स के बीच में और नेपाली लोगों के बीच में मिनिस्ट्री किया. मैं अपना फ़ोन घर में भूल गया और मेरे दिल में ऐसा आया कि मुझे फ़ोन लेने के लिए लौटना नहीं है. हालेलुया. तो मैं कल रात को ही वापस लौटा हूँ. थक भी गया था बहुत, बाइक पे ट्रैवल कर रहा था पास्टर जी के साथ. मैंने अपनी जो बाइक थी वो एक पास्टर जी के जीवन में बीच दी. मुझे प्रभु ने बोला उनको दे दो. तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ. प्रभु ने मुहैया किए हैं कुछ पैसे, कुछ अभी बाकी हैं, तो मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ. परमेश्वर एक अच्छी बाइक, थोड़ा सा बढ़िया कुशन हो जिसके ऊपर, और लॉन्ग राइड के लिए कन्वीनियंट हो, तो वो मैं लेना चाहता हूँ. और परमेश्वर मार्ग खोल रहे हैं. परमेश्वर का धन्यवाद. परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को, ज़रूरतें पैदा होने से पहले ही जानते हैं. परमेश्वर का धन्यवाद हो. तो बहुत लंबी लंबी राइड पे जाना पड़ता है. गांव-गांव में घूमते हम, शहर शहर में प्रभु का वचन फैलाते जाते हैं. सड़कों पे भी काम करते हैं, ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. बहुत सारी आत्माएं हमें रोड सड़कों पे मिलती हैं. कल बहुत सारे नए लोग एक जगह इकट्ठा हुए, नेपाली लोगों के बीच में हमने सभा की. तो प्रभु महान है. प्रभु का धन्यवाद हो. सिंपलिसिटी से हम परमेश्वर की सेवा में लगे रहते हैं. हालेलुया. तो 11 o'clock मिलेंगे. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो दिन है ये बहुत पवित्र दिन होते हैं परमेश्वर के कैलेंडर के मुआफिक.
आप लेविटिकस 23 चैप्टर पढ़िएगा, उसमें सब आपको पता लगेगा। रोश हशाना जो योम किपुर हमने सेलिब्रेट किया, पहला जो फर्स्ट मून, आप आज आपको चौथे या पाँचवें दिन का चांद दिखाई देगा आसमान में। जब पहले दिन का चांद था तब ये पर्व शुरू हुआ। अब जब ये चांद 10 दिन का हो जाएगा, 10th डे का पहुंचेगा चांद, तो जब 10th डे का ये चांद होगा उस दिन आएगा योम किपुर। किपुर का मतलब होता अटोनमेंट, प्राश्चित, कफारा। योम का मतलब दिन, कफारे का, प्राश्चित का दिन। और वो दिन आएगा जब वो फर्स्ट डे का मून था, जब 10th डे का होगा। आज 4th डे का होगा मून, 5th डे का शायद, 6th। और हम लास्ट के 3 दिन जो हैं उसमें फिर फास्टिंग करेंगे, 3 days फास्टिंग, 72 hours we'll go without food and we will stay before the Lord praying and interceding। ये दिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन दिनों में जूइश लोग 10 days की फास्टिंग करते हैं और परमेश्वर के चेहरे की खोज करते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन दिनों में ये डेज ऑफ रिपेंटेंस होते हैं, डेज ऑफ तशूबा, टर्निंग बैक टू गॉड, परमेश्वर की ओर मुड़ना, अपने दिलों को तोड़ना, अपने अंदरूनी गहराई से परमेश्वर के चरणों में अपने आप को पोर आउट करना और क्षमा मांगना, परमेश्वर से अपनी लाइफ को रेकंसाइल करना, हर गंदगी, हर बुरा काम, हर बैड डिसीजन, हर गलत बातें जो जीवन में की हैं वो परमेश्वर के चरणों में ला के सच्चा पश्चाताप करना और अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करना, सेट अपार्ट। ये 10 days में पीपल सेट देमसेल्व्स अपार्ट फॉर गॉड। दे डू नॉट सेट देमसेल्व्स फॉर सेकुलर लाइफ, दे सेट देम अपार्ट फॉर द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि इन दिनों में स्वर्ग में किताबें खुलती हैं, आपकी और मेरी लाइफ की किताबें खुलती हैं, दुनिया की, दुनिया के कंट्रीज़ की, दुनिया की पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल लीडर्स की, दुनिया में जो चर्चेज़ हैं, चर्चेज़ की और चर्च के लीडरशिप की, पादरियों की भी किताबें खुलती हैं। किताबें खुलती हैं दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम की, दुनिया की अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, इकोनॉमिक सिस्टम, रिलीजियस सिस्टम, हेल्थ केयर सिस्टम, the scientific department, the armies and the economic sector, the industrial sector, the agricultural sector, और हर एक फासेट की किताब यहोवा खोलता है और लोगों को वे किया जाता है। मने 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 तकेल उपसरिन, हे राजा तू तराजू में डाल के तोला गया और तू कम पाया गया और तेरा राज्य डिवाइड कर दिया गया। तो ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इन दिनों में प्रभु की ओर मुड़े, प्रार्थना में रहें, आराधना में रहें, परमेश्वर के चरणों में बने रहें, पश्चाताप के रूह से भर जाएं, परमेश्वर को खोजें और परमेश्वर जो परमेश्वर का आत्मा जैसे कहे वैसे अच्छे काम, भले कामों में लगिए। हालेलुया। तो 3 लास्ट डेज जो हैं उसमें हम फिर 72 आवर्स की फास्टिंग करेंगे। आप में से कई लोगों ने 3 दिन फास्ट किया हमारे साथ, इंग्लैंड से किया, कुछ ने कनाडा से, कुछ यूएस से थे, कुछ ऑस्ट्रेलिया से थे, कुछ लोग अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से भी थे, इंडिया से काफ़ी लोग थे। तो फिर प्रार्थना में जुड़िएगा, मैं आपको डेट्स एग्जैक्ट बता दूंगा। और आज 11 o'clock वी विल गैदर अगेन, 11 बजे हम फिर मुलाकात करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की।